Yes, ma'am. Yes, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और समय कट रहा है आप लोगों का घर पे? हाँ, Yes, ma'am. लग रहा है अभी नींद नहीं पूरी हुई है। लिसन स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मेंटेनिंग योर नोटबुक्स? हाँ, as per your old routine, this is September going on. Okay, so be ready for the half yearly exams. ठीक है ना? अब आपके पास समय नहीं है, स्टार्ट प्रिपरेशन। ओके, तो जिन बच्चों ने नोटबुक्स नहीं मेंटेन किया है, काइंडली मेंटेन योर नोटबुक्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ओके, एंड स्टार्ट योर रिवीजन वर्क लिटिल लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके जो है आप अपना रिवीजन वर्क शुरू कर दीजिए, नहीं तो एनी टाइम देयर विल बी अनाउंसमेंट फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड दैट टाइम यू विल बी सफरिंग द मोस्ट। ओके, सो बेटर स्टार्ट योर रिवीजन वर्क। जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं कम से कम वो तो आप तैयारी कर सकते हैं। एज फार एज SST इज कंसर्न, इसका सिलेबस वास्ट है, आप देख ही रहे हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। Okay, we were covering the fourth lesson of history and hope you have gone through the content that I have forwarded you early in the morning. Now let us try to understand how did colonial rule affect tribal lives. As I told you yesterday, what do we mean by colonial rule? Okay, the term colonial rule, it means that a powerful country, okay, a powerful country, in our case this powerful country, it was Britain. Okay, and Britain was trying to subjugate us. It was trying to what? Dominate us in our each and every sphere of our, okay, life. And this subjugation was leading to changes. This subjugation was leading to changes in the political sphere, in the social sphere, in the economic sphere. Okay, so when a powerful country, I hope you remember colonization. Kripakar, what is colonization? Kripakar. Kripakar, what is colonization? Now he will not speak only. When a powerful country, okay, like Britain subjugates, okay, a less powerful country, like India, country like India, changes take place. It leads to changes. It leads to changes in the political sphere, social sphere, okay, and economic sphere. ठीक है ना? राजनीतिक, ओके, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो है बहुत सारे बदलाव हम महसूस करते हैं। ओके, और इसी को हम जो है उपनिवेशवाद कहते हैं। दिस इज नोन एज कोलोनाइजेशन। दिस इज known as colonization. So I hope the concept of colonization is clear. ठीक है, मेरे हिसाब से उपनिवेशवाद क्या है ये आपको पता है? अभिषेक गिरी, अभिषेक गिरी, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? Yes, ma'am. Is this okay? Is the definition of colonization okay? Yes, ma'am. पक्का? Is it correct? Now tell me how many colonies were under Great Britain? Ma'am, 18. Okay. क्या अफ्रीका कॉलोनी था ब्रिटेन का? Yes, ma'am. Was Africa one of the colonies of Britain like India? 18. Okay. आराम Yes, ma'am. मैम रुकिए। Who is this?
नहीं हुआ? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Who has not written it? I will forward it. मैं लिख के भेज दूंगी. Okay, let us continue with the class. जो नहीं लिख पाया है वो WhatsApp कर देना मुझे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी. Okay? Now see, how did the colonial rule affect tribal people? हमें पता है कि हमें पता है कि ये जो ब्रिटिश हैं, ओके, ये हम जो है उनकी कॉलोनीज थे, एंड दे वर द रियल मास्टर्स, ओके, एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग, द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स, ओके, इट इज चेंजिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. लेट अस सी हाउ दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. ठीक है ना? हमें पता है कि अमंग द ट्राइबल्स, द ट्राइबल चीफ्स, among the tribals, okay, the tribal chiefs acquired great importance. The tribal chiefs, okay, they acquired what? Great importance in the community. ठीक है ना? जो सरदार होते थे, okay, जो सरदार होते थे उनका एक अलग ही जो है महत्व होता था. क्यों? क्योंकि बाकी जो उस समुदाय के जो लोग थे, ठीक है ना, आदिवासियों में जो बाकी समुदाय के जो लोग थे वो अपने सरदार का अनुसरण करते थे. ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? व्हेन द ब्रिटिशर्स among the tribals, the tribal chiefs acquired great importance, but what we see with the arrival of the Britishers, okay, the functions and the powers of the tribal chiefs changed. Okay, so we see with the arrival of the Britishers, the functions, इनके जो कार्य थे, okay, कार्य करने के तरीके जो थे, okay, और जो इनका जो अधिकार था इनके लोगों के ऊपर, वो जो है आस्ते आस्ते कम होने लगता है. और ये क्यों होता है? See, powers of the tribal chiefs, okay, considerably changed. Okay, पहले जो है इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो समुदाय के जो लोग थे, इनका जो है उनका जो है इनके प्रति एक अंधविश्वास रहता था. जो उनके सरदार कहते थे वो लोग करते थे. ओके, बट नाउ इट इज we see with the arrival of the Britishers, okay, इनके अधिकार जो है इनसे ले लिए गए हैं. अब इनको जो है, okay, ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं, okay, now they have to pay tribute to the Britishers. Now the chiefs, okay, had to, okay, pay tributes to the British. अब देखो, जो एक समय में जो है अपने लोगों से जो सम्मान पा रहे थे, अब उनको जो है दूसरों को सम्मान देना पड़ रहा है, दूसरों को जो है वो अधिकार देना पड़ रहा है जो एक समय में उनका था. ठीक है ना? तो have a look what happened to tribal chiefs. Under this heading, what happened to the tribal chiefs, you see, okay, before the arrival of British, in many areas the tribal chiefs were important people. Page number 43. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. तो उनका उनके प्रांतों के ऊपर जो है पूरा अधिकार था. वो अपने हिसाब से जो है अपने प्रांत का शासन कर सकते थे. ओके, और अपने लोगों को अनुशासित भी कर सकते थे. बट जैसे ही ब्रिटिश आ गए, उनसे ये अधिकार ले लिया गया. अब ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं, इन्हीं को जो है, ओके, ब्रिटिश जो है वो अनुशासित करने लग रहे हैं. दे आर डिसिप्लिनिंग. Okay, the tribal chiefs are being disciplined by the British. Okay, and as such we see these tribal chiefs, they were allowed to keep little bit of land titles. उनके पास जो जमीनें थी, उनके पास जो भूमि था, उसके जो है थोड़ा बहुत अधिकार उनको जो है मिला. Yes, Ayush, you have raised your hand. Ayush. Ayush, what do you want to ask? हाँ, आवाज नहीं आ रही है मेरी. मैम, हाँ बताओ.
मैम आदिवासी थे, उनके पास पैसा नहीं होता होगा, वो कहाँ से टैक्स भरते होंगे? हाँ, कहाँ से टैक्स भरते होंगे? उनके पास जमीनें थी ना। हाँ, जमीनों पे वो फसल उगा रहे थे ना। They were practicing झूम cultivation. They were practicing shifting cultivation. Okay, so whatever crops they are growing, आपने पढ़ा है कि आदिवासी लोग अपने जो प्रोडक्ट्स होते थे, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, वो मनी लेंडर्स के साथ एक्सचेंज करते थे ना, व्यापारियों को सेल कर देते थे और उनसे जो है अपनी जरूरत की चीज। हाँ बेटा। मैम आदिवासी सब उन लोगों को अपना मैम क्रॉप देते थे। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, when we were doing the land revenue settlements, we saw the revenue, ये जो लगान था, ठीक है ना, revenue was paid in 2 ways. आपको बताया थे ना, 2 तरीके से जो है लगान दिया जाता था। What was it? पीयूष, do you remember? 2 तरीके कौन से थे? एक था कैश, ओके, और एक था काइंड, ठीक है ना, लगान के रूप में। हाँ, तो एक जो हो गया काइंड का मतलब हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स। मैम थिंग्स हो गया, थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स। उनके पास फसल होता था, तो जो वो अनाज उगाते थे, ओके मैम, ओके, वो देते थे, ओके। एंड कैश का मतलब हो गया वो अपने फसल को बेच के जो है जो पैसा मिलता था उसके रूप में जो है वो जो लगान है वो देते थे। अमन अंसारी, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? खुद को अनम्यूट करो। अमन, अनम्यूट योरसेल्फ। See, he is raising his hand but he is not unmuting himself. So have a look. Okay, revenue was paid in 2 ways. आदिवासी लोग जो है अंग्रेजों को लगान देते थे, जो भी फसल उगाते थे या जो भी जंगल से उनको प्रोडक्ट्स मिलते थे, ठीक है ना, उसको जो है वो कम दामों में जो है व्यापारियों लोग को दे देते थे। और व्यापारी लोग जो है हाई जो है रेट चार्ज करते थे अपने गुड्स के बदले में। उनके जो वस्तुएं होती थी, जो जंगलों से जो आदिवासियों को जो वस्तुएं होती थी, वो रेयर क्वालिटी की होती थी और बहुत ही बहुमूल्य होती थी। लेकिन वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे ना, बाहर की दुनिया से वो लोग अवगत नहीं थे, तो उनको नहीं पता था कि उन वस्तुओं की वास्तविक कीमत क्या है। What was the original price of those products? So these traders and the money lenders, okay, they exploited them. ये लोग उनका शोषण करते थे, उनसे जो है उनके प्रोडक्ट्स बहुत कम दाम में खरीदते थे, लेकिन अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए और भी जरूरत की चीजें हो गई, उनको जो है ऊंचे दाम में बेचते थे। Okay, so they were exploiting both sides. Okay, now you see what happened to these tribal chiefs. Under this section, we are understanding the lives of the tribals. Okay, life of the tribals were affected in these ways. In these ways, इन तरीकों से जो है उनके ट्राइबल्स का जो है जीवन जो है वो प्रभावित होता है। Now, as far as I have explained you, tribal chiefs के साथ क्या हो रहा है? What is happening to them? Piyush, will you tell me what happened to the tribal chiefs? बोलो। हाँ मैम उन लोग का अधिकार छीना जा रहा है। हाँ, they lost much of their power. They lost, okay, much of their power and control. Much of their power and control over their fellow men. ठीक है ना, अपने ही समुदाय के जो लोग थे, ठीक है ना, they lost much of their power, okay, and control over their fellow men. तो उनके अंग्रेजों के आने के पहले जो उनके जो भाई बंधु थे, ठीक है ना, वो उनकी बात जो है आंख बंद करके जो है वो विश्वास करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आ जाते हैं, okay, they are playing the role of mediators, and now we see that these tribal chiefs, they are losing much of their power and control over their fellow men. Okay, ठीक है ना? Now you see what is happening. Yes, मैम उन लोग का पालन, मैम अंग्रेज का मतलब मैम हुक्म पालन करना पड़ता था। yes,
ओके जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, जो Yes, इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, आप देख रहे हैं ना, बाय फोर्स उनको जो है एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था। ओके और जबरन जो है उनको अपनी जो बेस्ट फर्टाइल लैंड्स होते थे उसमें जो है इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। सो दिस ब्रिटिशर्स दे वर अप्लाइंग ब्रूट फोर्स, ठीक है ना, ये लोग फोर्स अप्लाई करके जो है अपनी बात मनवाते थे। नाउ यू सी दिस ट्राइबल चीफ्स, ओके they had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British। अब देखो, अब ब्रिटिश जो है वो क्या कहते हैं, ब्रिटिश जो है वो कहते हैं कि जो संथाल्स हैं, ओके जो संथाल्स हैं, जो गॉन्ड्स हैं, they are the civilized people। they are saying ना, they are saying that of all the tribal communities, the santhals and the gonds, they are civilized, and rest, since they are following the activities like hunting, gathering, they are following activities like herding, and they are moving from one place to another, so they are uncivilized, they are wild and savage, and as such we are not able to, they were not able to what, okay, exercise control over them। So what we see, अब जो ये ट्राइबल चीफ्स हैं, ठीक है ना, इनकी बात जो है इनके भाई बंधु जो है बहुत अच्छे से मानते थे, इनको रेस्पेक्ट भी दे रहे थे, लेकिन अब ब्रिटिश जो है वो इनको ऑर्डर दे रहे हैं। ब्रिटिश जो है वो इन ट्राइबल चीफ्स को जो है, सरदारों को जो है वो आदेश दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप अपने जो समुदाय के जो लोग हैं उनको अनुशासित करिए। अब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आज मैं आपको जो है पढ़ा रही हूँ और आप मेरे हिसाब से चल रहे हैं, और फिर कोई एक और व्यक्ति आता है और वो कहता है कि इसको डांटो, इसको बोलो ये ऐसे बैठे, उसको बोलो कि ये ऐसे करे, तो विल यू बी लिसनिंग टू मी? आपको जो, आपका जो है मेरे प्रति जो रेस्पेक्ट है वो थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा? यस मैम, हो जाएगा मैम, हो जाएगा। यस मैम, आप जो है यस मैम, हो जाएगा। आप जो है वो सोचने लगेंगे कि मैं आपकी दुश्मन हो गई हूँ। पहले जो Yes, पहले जो आपके साथ में प्यार से पेश आ रही थी, अच्छे से आपके साथ बात कर रही थी, मैम इन लोगों का भड़काने का प्रतिक्रिया है। ओके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी। अब चूंकि मैं दबाव में हूँ तो मैं सारा दबाव आपके ऊपर निकालूंगी, ठीक है ना। तो यही हो रहा था इन लोगों के साथ। दिस वाज हैपनिंग विद दिस ट्राइबल पीपल। ओके द ट्राइबल चीफ्स दे वर आस्क्ड, द ट्राइबल चीफ्स, the tribal chiefs, okay, they were asked to discipline the community members, ठीक है ना, समुदाय के जो लोग हैं उनको जो है अनुशासित करने को उनसे कहा गया। community members which created what, which created okay एंगर अगेंस्ट देम। अब उनके समुदाय के जो लोग हैं वो उनके प्रति जो है भड़क गए हैं। अब वो सोच रहे हैं क्या कि ये लोग जो हैं अंग्रेजों के हिसाब से चल रहे हैं, अब ये हमारे जो है हितैषी नहीं रह गए, ठीक है ना। तो ये सारी दिक्कतें जो है ट्राइबल चीफ्स के साथ हो रही थी। अब वो पहले जो ट्रेडिशन अपने फॉलो कर रहे थे, ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे। आप देखते होंगे जो ट्राइबल्स होते हैं उसमें जो है जैसे ही सरदार आते हैं या जैसे ही कोई अपने आप को प्रूव करता है, आप देखते हैं सब के सब बाव करते हैं, ठीक है ना, एक साथ जो है सब रेस्पेक्ट देते हैं। नाउ यू सी दिस रेस्पेक्ट वाज, उसके राजा होते हैं तो नीचे अगेंस्ट के बाद मैम, नीचे अगेंस्ट के बाद अगेंस्ट देम। इट इज देयर इन योर बुक बेटा, सब कुछ आपके बुक में है, आप पढ़िए। यस मैम, दिया है मैम। यस मैम, इट इज देयर इन पेज नंबर पे है? पेज नंबर 43 मैम, पेज नंबर 43। यस मैम, पेज नंबर 43 in your book. Okay. Now the second यस मैम point, see, है। have a look. What happened to the shifting cultivators? We know two types of cultivation was going on. What was this, Piyush? Piyush. कल्टीवेशन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन को और किस नाम से जानते हैं? हाँ, झूम कल्टीवेशन is also known as शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ब्रॉड कल्टीवेशन, slash and burn cultivation. Okay,
झूम कल्टीवेशन इज नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. इसको मिल्पा भी कहा जाता है. जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको पता चलेगा. Okay, it is also called milpa. Now you see what is happening to the shifting cultivators. As I have told you, the Britishers, okay, the British, okay, believed that the tribals, they were what? The tribals were wild and savage. ठीक है ना? अंग्रेजों के हिसाब से जो है, जो ट्राइबल जो पीपल हैं, ये क्या है? ये जंगली हैं, ठीक है ना? और ये सैवेज है, मतलब इनको हम सिविलाइज नहीं कर सकते हैं. ओके, ये असभ्य है. द वर्ड सैवेज मीन्स असभ्य. ओके, तो ये जंगली है, ये असभ्य है. और शुरू से ही आप चैप्टर की शुरुआत. यस, बोलो मैम. मैम ब्रिटिश आदिवासियों का भाषा कैसे समझते होंगे? क्यों आदिवासी? देखो, आप कहीं भी दूसरे देश में जाते हो, आपको किसी की भाषा समझनी होती है, आप एक ट्रांसलेटर को लेके जाते हो ना. डोरेमोन को देखते हो, डोरेमोन को देखते हो, ट्रांसलेटिंग टूल निकालता है अपना. जानवरों की भाषा समझने लगता है. जो दूसरी समय काल में जाता है उन लोगों की भाषा समझने लगता है. ओके, Yes, ma'am. यस मैम. So we see translators are there. मैम, Okay. मैम बाइगास तो Okay. किसी को लेते नहीं थे और किसी को देते भी नहीं थे, तो फिर ब्रिटिश के साथ कैसे रहते थे मैम? ब्रिटिश ने उनको फोर्स किया बेटा. ओके, अभी तो शुरू ही किए हैं, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही किए हैं. आप देखिए कैसे क्या हो रहा है. ओके, now you see the British believed that the tribals were wild and savage. Okay, and to them only the Santhals and the Gonds. इस तरफ दिखाई नहीं दे रहा होगा. Only the Santhals and the Gonds, okay, were civilized. तो देखो, अंग्रेजों के हिसाब से जो है, ओके, ये जो दो समुदाय के जो लोग थे, ठीक है ना, वो जो है उनके हिसाब से सभ्य थे. क्यों? Because these people, the Santhals, okay, the Santhals and the Gonds, they were practicing what? They were settled agriculturalists. ठीक है ना? वो लोग एक जगह सेटल हो गए थे, वो मूव नहीं कर रहे थे, तो उनको कंट्रोल करना आसान था, उनके ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित करना आसान था. तो उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से संथाल्स और गॉन्ड्स जो है वो सिविलाइज थे. लेकिन जो लोग झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, the झूम cultivators, the shifting cultivators, what they were doing? They were moving from one place to another. Okay, and it was creating difficulty for the British to control them. Okay, so we see the shifting cultivators. Okay, try to understand it. History जो है स्टोरी के रूप में समझोगे तो अच्छे से समझ लोगे. The shifting cultivators, okay, they moved from one place to another. आपको पता है कि वो लोग एक जगह खेती करते हैं और जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, ओके, वो लोग दूसरे जगह जाके फिर वही चीज को जो है दोहराते हैं. ओके, एंड सी, so what we see is, okay, we see that this is creating, okay, another, and this created problem for the British. मैम, अनदर के बाद क्या लिखी हैं? and one place to another, and this created problem for the British. Okay, तो ये क्या कर रहे हैं, जो अंग्रेज हैं, ओके, ये नहीं चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो फॉलो करें. ठीक है ना? ओके, सो व्हाट दे वांटेड देम, they wanted them to give up this shifting cultivation. but हम देखते हैं कि जो shifting cultivators हैं, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 44 में दो images दिए गए हैं. there are two figures provided on page number 44. have a look. one is figure 6. Yes, ma'am. okay, in figure 6 you can see wheel women. धान की रुपाई हो रही है. हाँ, धान की रुपाई हो रही है. इसमें आप देख सकते हैं कि भील समुदाय की जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, वो धान रोप रही हैं. कहाँ पे? जंगलों के बीच में. ठीक है ना? जंगलों के बीच में जो है वो धान रोप रही है. भील समुदाय मतलब? भील समुदाय जो है वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी था. ठीक है ना? सी, इफ यू टेक आउट योर पेज,
if you take out page number 41 निकालो, figure 3 अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि this is the location of some tribal groups in India. Yes. हमारे देश में, और मैंने आपको इमेज फॉरवर्ड किया था, मैप भेजा था आपको पढ़ने के लिए. ओके यस मैम. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो भील समुदाय जो है ये लोग गुजरात में पाए जाते थे. ओके, they were the settlers of Gujarat. Okay, you can see Gaddis, Van Gujars in the hilly areas. Then you can see the Santhal, the Mundas around. Okay, they are located near West Bengal, यस मैम. Orissa and the northeastern states. ठीक है ना, इनके समीप है ये. मध्य प्रदेश. ओके, तो देखो दो यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके दिए गए हैं. नीचे देखो ट्राइबल वर्कर्स हैं आंध्र प्रदेश में. ये लोग नॉर्मल जो है धान की रोपाई कर रहे हैं. फील्ड को जो है अभी जो है धान का सीजन चल रहा है, आप देख रहे होंगे. ओके, खेतों में जो है धान के फसल लगे हुए हैं. ओके, so what you see is there is a difference between these two areas. अब हमें ये समझना होगा कि जो ट्राइबल्स हैं उनका. मैम यस मैम जो फिगर 2 में दिखा रहा है वो क्या कर रहे हैं? क्या फिगर 7 में, फिगर 7 मैम में 2 वो में फिगर 2 ये लोग जो है पत्ते लेके जा रही हैं, पांडानूस केवड़ा के पत्ते लेके जा रही हैं उससे प्लेट बनाने के लिए. ठीक है ना. यस मैम. अभी जो है अब देखते हैं कि ऑकेशंस में थर्माकोल के प्लेट मिलते हैं जो बहुत ही प्रदूषण फैला रहे हैं. ठीक है ना. हम लोग यूज करते हैं और यूज करके उसको थ्रो कर देते हैं. बहुत सारे घरों में तो मैं देखती हूँ कि जब कामकाज हो जाता है, परोज हो जाता है, तो उसको जला दिया जाता है. ओके, जो ग्लास होते हैं, डिस्पोजल ग्लास हो गए, डिस्पोजल प्लेट्स हो गए, उनको जला दिया जाता है. अब जलाने से सोचिए कितना प्रदूषण फैल रहा है. ओके, अब हम ऐसे भी उसको डिस्पोज कर रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है. ये जो पत्ते हैं, पांडानूस के जो पत्ते हैं, केवड़ा के पत्ते, ये इको फ्रेंडली होते हैं, ये गल जाते हैं. आप यूज करिए. अभी भी बहुत सारी जगहों में पत्तल इसको बोला जाता है हमारे प्रादेशिक भाषा में. पत्तल का प्रयोग करते हैं और खा के जो है हम उसको जो है डिस्कार्ड कर देते हैं और डिस्पोज कर देते हैं. यस मैम. सबसे बेस्ट जो है साउथ इंडिया के लोग होते हैं. साउथ इंडिया के लोग जो होते हैं वो केले के पत्तों पे खाते हैं. They use the banana leaves. हम अभी भी. Yes ma'am. Yes. Even today in most of the occasions. Okay. Yes ma'am. Festivals में. Yes. So you see. शादी होती है अभी. Yes बेटा. लग रहा है जैसे मैं गूगल मैडम हो गई हूँ, सब कुछ बता दूंगी. हाँ. Yes ma'am. The forest were the home. देखो. The forest were the home of the tribals. Okay, ये उनका जो है परिवेश था. ओके, और जो ट्राइबल्स थे उनका पूरा जीवन जो है जंगलों के आसपास ही केंद्रित था. वो जंगलों से बाहर निकलने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे. दे वर वर्शिपिंग. आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि जो ट्राइबल्स होते थे, आदिवासी होते थे, वो नेचर स्पिरिट्स, ओके, माउंटेन स्पिरिट्स को वो लोग जो है पूजा करते थे, अपने पूर्वजों की पूजा करते थे. ठीक है ना. तो they were very connected with the forest. But now these Britishers, what they wanted these people to vacate the forest. वो चाहते थे कि वो लोग जंगलों से निकल जाएं ताकि जो है जंगलों पे उनका जो है अधिकार हो जाए. ओके, और ये ट्राइबल्स जो है जंगलों में रह के जो है वो सशक्त थे. ठीक है ना. Because there were many areas in the forest which could not be invaded by the British. उनको जो है उन रास्ते आप देखते होंगे जहाँ पे बैम्बू ग्रूव्स होते हैं, जहाँ पे बसवारी होता है. ओके, बांस जो बैम्बू के जो पौधे होते हैं, आप देखते हैं ना, अगर उसमें आप प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ पांव पूरे छिल जाते हैं. ओके, तो देयर वर दीज एरियाज व्हिच कुडंट बी इजीली इन्वेडेड बाय द ब्रिटिश. सो द ट्राइबल्स दे डिड नॉट वांट टू गिव अप द फॉरेस्ट, बट द ब्रिटिश दे फोर्स्ड देम, okay, to give up this forest, and they were completely against the settled cultivators. Now see, have a look at page number 45. Forest laws and their impact. Forest laws and their impact. Okay, जंगल के जो कानून है, okay, जंगल के जो कानून थे वो इन आदिवासियों पे जो है लागू होते थे. Okay, see.
forest laws and their impact. Okay. Okay, the forests were the rich source of resources, okay, for the British. अंग्रेजों के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा संसाधन था. ओके, जंगल जो था वो बहुत ही अच्छा संसाधन था. तो वो क्या कर रहे, दे declared okay vast areas of the forest as what? Reserve forest. ठीक है ना. वो लोग क्या कर दे रहे हैं, अंग्रेज जो है वो बहुत सारे जो जंगलों के जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उनको आरक्षित कर दे रहे हैं. और इन रिजर्व फॉरेस्ट में ओके द ट्राइबल्स वेर नॉट अलाउड. अब देखो, आपको आपके घर से निकाल दिया जा रहा है और आपके घर पे जो है दूसरे लोग की अथॉरिटी हो जा रही है, और इनकेस अगर आप अपने घर में जाना चाहते हो तो आपको जाने से रोक दिया जा रहा है. एंड whoever tries to return back to the forest, they were penalized, they were punished. Okay, the tribals were not allowed to enter these areas. ठीक है ना. वहां से ना तो वो जलावन इकट्ठा कर सकते थे और ना ही जो है वहां से वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते थे. सपोजिंग दिस इज द फॉरेस्ट एरिया, ओके, एंड वी सी हियर देयर आर द ट्रीज. ओके, अब जंगल, ये पूरा जंगल है, इसमें इतना एरिया जो है मैं इसको जो है रिजर्व फॉरेस्ट कर दे रही हूँ. इसको मैं जो है दिखाई दे रहा है, सी आई एम ओके what I am doing, I am making this area as reserve. ठीक है ना, इसको मैं आरक्षित क्षेत्र कर दे रही हूँ. अब ये चूंकि आरक्षित क्षेत्र हो गया, अब इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. अगर आप प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से कुछ भी लेने की कोशिश करेंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया या घास हो गया या कुछ भी हो गया, आप यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे, you will be penalized, you will be punished for that. So these were the forest laws. Okay, and these forest laws were having a deep impact upon the lives of the tribals. See page number 45, have a look. The British extended their control over all forest and declared that forests were state property. Okay, some forests were classified as reserve forest for the produced timber which the British wanted. Okay, अब देखो, अंग्रेज जब हमारे देश, which page number? 45 बेटा. अंग्रेज जब हमारे देश में जो है वो अपना प्रशासनिक कार्य जो फैलाने लगते हैं, उसका विस्तार करने लगते हैं. ओके, when they are what extending their administrative control, what they wanted the areas to be closely connected. ठीक है ना. वो बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप करना चाहते थे. क्यों? बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी तो आसानी से रॉ मटेरियल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी होगी. ओके, बहुत ही इजी वे में जो है raw materials could be transported from one place to another. So now the British, they wanted to develop the communication system. वो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहते थे. और आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी, ओके, आई होप यू रिमेम्बर लॉर्ड डलहौजी. यस मैम, सुने हैं नाम. यस मैम. अब पिटोगे. यस मैम. झांसी की रानी में गवर्नर था. झांसी पीयूष मैम, झांसी मैम पीयूष. यस गवर्नर था. पीयूष, टेल मी लॉर्ड डलहौजी, उनकी डॉक्ट्रिन क्या थी? कौन सी नीति उन्होंने शुरुआत की थी? किस नीति की शुरुआत की थी जिसके तहत झांसी, सतारा, उदयपुर, संबलपुर, ये सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी. यस, इट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से यस, इट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल थे. ठीक है ना, ही वाज वन ऑफ द गवर्नर जनरल्स. ओके, एंड वी सी दैट लॉर्ड डलहौजी, ओके, who was famous for the doctrine of lapse. Okay, he is the Lord Dalhousie
is considered as the father of Indian Railways. As the father of Indian Railways. हमारे देश में जो रेलवे लाइंस जो बिछी हैं, ठीक है ना, इनके रेलवेज की शुरुआत जो है अंग्रेजों ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए. It were the British, okay? It were the British who started the Indian railways in our country. Why? Okay, for better transportation facility. Okay, वो लोग transportation cost जो है वो कम से कम हो. Okay, they wanted to minimize. Okay, the British, they wanted to minimize the transportation cost. आप कहेंगे कि फॉरेस्ट लॉस से ये क्यों जुड़ा हुआ है, आप बता रहे हैं. The British wanted to minimize, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे थे उसको जो है वो कम करना चाहते थे. और इसी के लिए जो है वो लोग जो है रेलवे लाइंस जो है बिछाना शुरू करते हैं. और जो है हम देख रहे हैं कि रेलवे लाइंस बिछाने के लिए आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, खास करके दादा दादी से पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वुडन प्लैंक्स, ओके, लकड़ी के जो हमारी प्रादेशिक भाषा में हम उसको बटाम कहते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े जो है लॉग ऑफ वुड होते हैं. ओके, बड़े बड़े जो है लकड़ियों के जो है गट्ठे जैसे रहते हैं, और उसको जो है रेलवे लाइंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. आज के डेट में जो है आयरन इज बीइंग यूज्ड, बट प्रीवियसली जब हम लोग छोटे छोटे थे, व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, ओके, दैट टाइम वी सॉ द रेलवे लाइंस दैट वर मेड अप ऑफ वुड. और बारिश के मौसम में जो है बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो पानी में गायब हो जाते थे, या तो सड़ के जो है ब्रेक हो जाते थे, ठीक है ना. So we see that the British, they wanted to minimize the transportation cost. Okay, only 2 minutes left. For laying down the railway tracks, ठीक है ना. अब ये जो रेलवे लाइंस हैं, ओके, इनको तैयार करने के लिए क्या चाहिए था? टिम्बर वाज रिक्वायर्ड. ओके, और ये टिम्बर कहाँ से मिलेगा? ये टिम्बर जो है जंगलों से मिलेगा, ठीक है ना. टिम्बर जो है वो जंगलों से मिलेगा. चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक बायोपिक बनी थी. आई होप यू पीपल हैव वॉच्ड दैट. हाँ, आप लोगों ने देखा है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर? चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है एक बायोपिक बनी थी कुछ समय पहले, ठीक है ना. When you people were in class 7, it was being telecast on Star Bharat. It was being telecast. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. और उसमें उनका निक नेम था Yes, ma'am. उनका निक नेम था चंदू, ठीक है ना. Yes, ma'am. उनकी माता उनको चंदू Yes, करके ma'am. बुलाती थी. तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे भील समुदाय के लोगों को जो है उस बायोपिक में दिखाया गया था. भील समुदाय के लोगों को फोर्सिबली अप्लाई किया जाता था रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए, ठीक है ना. ओके, यार जानते हैं हम कब हो लोग less than 1 minute is left. ओके, सात तो जा सी क्यों को दलो पेज नंबर 45 स्लीपर. हम लोग जब टिकट बुक करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना स्लीपर क्लास में हमने बुक किया है, तो ना हो तब Yes, ma'am. ये स्लीपर नाम कहाँ से आया है? देखो, सी द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन व्हिच रेलवे लाइंस आर लेड. ओके, इट इज द प्लैंक ऑफ वुड. ओके, ठीक है ना. ये जो है लोहे के हो गए, ओके, और ये जो होता था ये वुड का होता था. दिस वाज मेड ऑफ वुड and these were the railway tracks. So these are, okay, these are the sleepers. These are called sleepers क्योंकि इनको हॉरिजॉन्टली ले किया जाता था. ओके, और यहाँ पे जो स्क्रू फिट किए जाते थे मोटे मोटे जो है, ओके, मजबूत स्क्रू से जो है रेलवे लाइंस को जो है फिट किया जाता था. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन?